अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا آقانا ملجانا مأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في شأن نبينا مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا مكي يا مدني يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نو شہ بز میں جنت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، آپ سب کو خصوصاً اور عالم اسلام کے مسلمانوں کو عموماً شب معراج مبارک ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ شب اسرا کے دولہا کے صدقے میں ہم سب کی اس محفل میں حاضری قبول فرمائے اور مکہ مدینے کی بہاریں نصیب فرمائے. سب کو سنیت پر گامزن فرمائے، سب کے کاروبار میں ترقیاں عطا فرمائے، ہر طرح حفظ و امان نصیب فرمائے
और मरने से पहले हर मुसलमान को कम अज़ कम एक मरतबा खाने काबा का तवाफ़ और हुजूर की बारगाह में अदब व एहतराम के साथ हाज़री नसीब फरमाए। मरते दम हम सब की ज़बानों पर कलिमा तय्यबा जारी फरमाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमीन 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 या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज रात जिसको सारी दुनिया शब-ए मेराज कहती है, शब का माना आता है रात, मेराज का माना आता है बुलंदी। शब-ए मेराज का माना, उसका मतलब बुलंदी वाली रात। क्या मतलब? यानी हमारे पैगंबर सारी कायनात के रहबर, इमामुल अंबिया, कायदुल अंबिया, अफजलुल अंबिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसी महीने की इस रात में, जिसको हम 26वीं रात कहते हैं, फर्श से अर्श, ज़मीन से आसमान, यानी पस्ती से बुलंदी पर तशरीफ़ ले गए थे। इसी बुलंदी पर आज की रात रूहानी तौर पर नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर तशरीफ़ ले गए थे। इसी बुनियाद पर बुलंदी पर जाने वाली रात हुजूर आज रात बुलंदी पर तशरीफ़ ले गए थे। इसी बुलंदी वाली रात को अरबी में लैलतुल मेराज, उर्दू और फ़ारसी में शब-ए मेराज कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम सब मिलकर दुरूद व सलाम पढ़ लेंगे। कुछ मैं बोलूं? अरे आप कुछ बोलो तो भाई। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चुनांचे शब-ए मेराज का मतलब आसानी से हमारे समझ में आ गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सैयदतुना उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में आराम फरमा रहे थे। आज की रात अल्लाह ताला के हुक्म से जनाब जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए। 70,000 फरिश्तों की झुरमुट में हुजूर को इस्तकबाल करते हुए आसमानों पर ले जाना था। बुराक सवारी लाई गई, हुजूर उस पर जलवागर हुए। मस्जिद हराम यानी मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस यानी मुल्क शाम, मुल्क अरब से मुल्क शाम, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ज़मीनी सफ़र हुआ। वहाँ हुजूर का इंतज़ार करने वाले कोई आम आदमी नहीं, अंबियाए किराम हुजूर का इंतज़ार कर रहे थे। सुबहान अल्लाह। अगर इसी तरीके से अल्लाह की तस्बीह, तहलील, ज़िक्र हमारी ज़बानों पर रहा तो अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते भी हुजूर की बारगाह में हम सब की तरफ से अर्ज़ करेंगे, या रसूल अल्लाह, मस्जिद रज़ा में तालाब कट्टे पर जो मस्जिद बनी है, आपका, आपके खुदा का ज़िक्र उम्मत कर रही है। अल्लाह हमारी इस तस्बीह को कबूल फरमाए। फिर वहाँ से आसमान अव्वल पर तमाम नबियों रसूलों की इमामत फरमाने के बाद आसमान अव्वल, फिर उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें आसमानों पर हुजूर तशरीफ़ ले गए। सिदरतुल मुंतहा, फिर क़ाब क़ौसैन, फिर सबसे बड़ी बात, खालिक़े कायनात का माथे की आँखों से दीदार फरमाया। अल्लाह ने अपने क़ुर्ब ख़ास में अपने हबीब को दीदार की लज्जत और वो चाशनी अता फरमाई। फिर उसके बाद
फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा कहकर वो पूरी राज की बातों को छुपा दिया। अल्लाह ने अपने बंदे ख़ास की जानिब वही फरमाई, कुछ राज की बातें बता दी। वो राज की बातें बताई, ये बताया, मगर वो राज क्या है वो नहीं बताया, चूँकि हर कोई उसका अहल नहीं। कुरान ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब से उस रात बहुत सारे राज की बातें बयान फरमाई। वो राज बताने वाला खुदा जाने, वो राज जानने वाले मुस्तफ़ा जाने। उसके बाद हबीब तुम बहुत बुलंदी पर आ गए हो, बलगल उला बिकमाल ही, बहुत बुलंदी पर आ गए हो। आपकी बुलंदी की इब्तिदा को भी कोई नहीं पहुंच सकता। बुलंदी की इंतहा तो सवाली नहीं पैदा होता। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया। एक माना पाया मर्तबा, तेरे मर्तबे जैसा कोई नबी मर्तबे वाला नहीं पाया। और एक माना पाया का आता है, तेरे तलवे जैसा भी नहीं पाया। अल्लाह के पैगंबर इमामुल अंबिया कायदुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के कुर्ब ख़ास में जो राज़ो नियाज की बातें हुई, जो रब देना था दे दिया, जो लेना था मुस्तफ़ा ने ले लिया। उनमें से एक बड़ी नेमत थी, हुजूर की उम्मत को तोहफे के तौर पर दिया गया, वो है नमाज। नमाज हुजूर लेकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये है शबे मेराज का मुख्तसर सा तज़किरा। इस रात में क्या हुआ? यही सब कुछ हुआ। यही सब कुछ हर साल इस रात में शबे मेराज के नाम पर सबको बताया, सुनाया, याद दिलाया जाता है, ताकि नबी की उम्मत को मालूम हो जाए कि हमारे नबी का अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम व मर्तबा रखा है। ये सबक पढ़े, दिल में हुजूर की अज़मत को बसाए, और फिर वो जो नमाज है अल्लाह ने अपने कुर्ब ख़ास में बुला के जो अता फरमाई थी, वो नबी की मेराज थी। और वो उम्मत को देकर, नबी की उम्मत को तोहफे में देकर ये इशारा किया, मेरे बंदो तुम आसमानों पर तो नहीं आ सकते, ज़मीन पर ही रहो, मगर ये तोहफ़ा जो नमाज का है, अगर नमाजों की पाबंदी करते रहे तो तुम ज़मीन पर ही नमाज पढ़ के तुम्हारी मेराज होती रहेगी। ये हुजूर के सदक़े में एक ऐसी नेमत, सारी नेमतें अल्लाह ताला ने आसमानों से ज़मीन पर उतारी, मगर इस नेमत को देने के लिए रब ने अपने हबीब को अपने कुर्ब ख़ास में बुलाकर ये नेमत अता फरमाई है। ये कोई मामूली नेमत नहीं। इस तरीके से ये एक बड़ा तारीख़ी वाक़या है, इस रात में पेश आया। इस खुलासे पर दो एक बातें अर्ज़ करनी है। अगर आपका इसी तरह सुनने सुनाने का जज्बा और शौक़ रहा तो कुछ अहम बातें आपके सामने रखूँगा। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ना होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या मक्की या मदनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने अभी अभी ये कहा, इस रात में बहुत बड़ा एक वाक़या पेश आया। वो वाक़या मेराज का वाक़या। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में सूरह बनी इसराइल की इब्तिदाई आयत में भी, सूरह नज्म में भी इसका तफसील से ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह फरमाता है, सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, अल्लाह पाक है। सबसे पहले सुबहान कहकर वाक़या नहीं बयान किया, वाक़ये से पहले अपनी तारीफ़ सुबहान कहकर। अय बंदो, वाक़या बाद में सुनना,
सुनाने वाला खुदा अपनी ज़ात, अपनी शान, अपनी सिफत बयान कर रहा है। ये मैं जो वाक़या बयान कर रहा हूँ ना, अपने हबीब को कुर्बे ख़ास में बुलाया, अक्ल इंसानी से मत सोचना। ये अज खुद नहीं गए, बुलाने वाला सुबहान है। सुबहान का माना पाक। पाक का क्या मतलब? हर कमी से पाक, हर नक्स से पाक। अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह की कुदरत कामिला की कोई इब्तिदा इंतहा नहीं, बंदों की समझ से बाला। वो लम्हे में जो चाहे करे, बड़ी कुदरत वाला। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बहुत कुदरत वाला। तो ऐ मेरे बंदो, वाक़या बाद में सुनना, इसका ख्याल रखना। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, इस नबी को बुलाने वाला अल्लाह है। मुस्तफ़ा अज खुद नहीं गए, बल्कि एहतमाम रब ने किया है। बड़ी कुदरत वाला है तुम्हारा परवरदिगार, जिसने अपने कुर्बे ख़ास में बुलाया। पहले अपनी ज़ात का, अपनी सिफ़ात का तज़किरा फरमाया, ताकि वाक़े को सुनने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुमकिन नहीं है, रात के मुख्तसर से हिस्से में ऐसे कैसे जा सकते हैं। ये आने वाले जितने भी वसवसे होंगे, इनको शुरू ही से जड़ पेड़ से खत्म कर दिया गया। अपनी अक्ल से मत सोचना, ले जाने वाला कौन है ये देखना। अगर इस वाक़े में तुम्हें जर्रा बराबर डाउट हुआ, वाक़े में डाउट नहीं कर रहे, मेरी कुदरत में तुमको डाउट हो रहा है कि क्या मेरा खुदा ये नहीं कर सकता, नऊज़ बिल्लाह, तुम्हारा ईमान डगमगा जाएगा। इसलिए वाक़या बाद में सुनना। अल्लाह की ज़ात पर, उसकी कुदरत पर यकीन कामिल रखना। वो ज़ात बड़ी पाक है। अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, जिसने अपने हबीब को रातों रात, हम अपने आला हजरत के आला अल्फाज में शबे मेराज में, शबे असरा में दूल्हा बनाया। रात में, लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में, पूरी रात नहीं, लैलन, थोड़े से हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम जो मक्का मुकर्रमा में है। मस्जिद हराम वो है जिसके बीचों बीच खाने काबा है। खाने काबा की इर्द गिर्द का पूरा हिस्सा मस्जिद हराम है। मस्जिद हराम में रुकने यमानी से बिल्कुल थोड़ा सा फासले पर, उस ज़माने में जिस रात हुजूर मेराज में तशरीफ़ ले गए थे, हज़रत उम्मे हानी का मकान था और हुजूर उस मकान में आराम कर रहे थे। उस रात अपने मकान में नहीं थे, अपने मकान में नहीं आराम कर रहे थे, हजरत बीबी उम्मे हानी के मकान में आराम कर रहे थे। आज रात अल्लाह ने बुलाया। फरिश्तों को भी इजाजत नहीं है बे इजाजत हुजूर के घर में दाखिल होने की, बे इजाजत। उनके घर जिब्रील भी जाते नहीं। आज रात बीबी उम्मे हानी के मकान में आराम कर रहे थे, बिला तकल्लुफ जिब्रील चले गए। आज की रात हुजूर आराम कर रहे थे और आज हुजूर को बेदार बड़े प्यार भरे अंदाज से कराया गया। और फिर मेराज से पहले आज की रात हुजूर जब आराम कर रहे थे, रोजाना हुजूर नमाज पढ़ते, क़ियाम करते, रुकू करते, सजदा करते, और आज आराम कर रहे हैं। यही तो दुनिया को बताना था। रोजाना मैं उसे याद करता और आज वो मुझे याद कर रहा है। दुनिया को मालूम हो जाए। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, हुजूर को बुराक पे सवार कराया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गए। वहां जाने के बाद अंबिया व मुरसलीन इंतजार में थे। हुजूर का हाथ पकड़ के मुसल्ले इमामत पर जनाबे जिब्रील अमीन ने बढ़ाया। एक छोटा सा सवाल, 1,24,000 अंबिया किराम वहां मौजूद हैं। सारी नस्ल इंसानी के बाप हजरत आदम भी हैं, हजरत इस्माइल भी हैं, हजरत इब्राहिम भी हैं, हजरत मूसा भी हैं, हजरत ईसा भी हैं, और ये सारे अंबिया किराम रसूलान इज़ाम हैं। छोटा सा सवाल ये पैदा होता है, ऐ जिब्रील अमीन, आप हुजूर का हाथ पकड़ के आगे बढ़ा रहे हैं, वो देखो पीछे हजरत आदम भी तो खड़े हैं, उनको बढ़ा दो ना।
हुजूर के जद्दे अमजद हजरत इस्माइल हैं, उनको बढ़ा दो ना। उनके वालिद माजिद हजरत इब्राहिम हैं, हजरत मूसा हैं, हजरत ईसा हैं, बड़े बड़े जलीलुल कद्र अंबिया किराम हैं। इनको आगे बढ़ाओ ना किसी को। इन सब को छोड़कर हुजूर ही को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? क्या ये पीछे वाले इमामत के काबिल नहीं? ए खामोश, ये सब के सब इमामत के काबिल थे, कर गए, अपने अपने दौर में इमामत कर गए। आज अगर इन तमाम इमामों की इमामत अगर कोई कर सकता है तो वो हुजूर की जात है। ये नहीं कि ये सब इमाम नहीं, ये नहीं कि ये इमामत के काबिल नहीं। सब इमाम अपने अपने दौर के इमाम थे, अपनी अपनी उम्मतों के इमाम थे, अपने अपने ज़माने में इमामत करके चले गए। मगर आज तमाम इमाम जमा हुए हैं, इन तमाम इमामों की अगर इमामत कोई कर सकता है तो वो हुजूर की ज़ात है। इसलिए हुजूर को आगे बढ़ाया गया। हुजूर ने नबियों की इमामत फरमाई, रसूलों की इमामत फरमाई। इसी को अरबी में इमामुल अंबिया कहते हैं, इसी बात को इमामुल मुरसलीन कहते हैं। नबियों की इमामत करने वाले, रसूलों की इमामत करने वाले हम बड़े खुश नसीब हैं, उस नबी की उम्मत में पैदा किए गए हैं। और ये हमारी अकीदत, ये हमारी मोहब्बत, ये हमारा महफिल, ये जलसा हुजूर की मोहब्बत में, इसी और इस तरह की हमें जो बेपनाह नेमतें मिली हैं, शुक्राना अदा करने के लिए महफिलें हम सजाते हैं। हुजूर ने बग़ैर किसी मुआवजे और बदले के हम जैसे अदना लोगों को अपनी उम्मत में कबूल फरमा लिया है। अल्लाह करे हम, हमारी नस्लें हुजूर की ग़ुलामी में हमेशा के लिए कबूल कर ली जाएं। आमीन, ज़ोर से बोलो। आज की रात अल्लाह ने अपने पास बुलाया। अरे अल्लाह तूने अपने पास क्यों बुलाया? कुरान खुद ही इसका जवाब दे रहा है, ली नूरियहू बिन आयातिना, ताकि अपने हबीब को हमारी निशानियाँ, कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियाँ, आसमान क्या, आसमान के ऊपर क्या, चाँद क्या, सूरज क्या, सितारे क्या, उसकी हकीकतें क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, जन्नत के हूर गिल्मा क्या है, जन्नत की नेमतें क्या है, सरमदी अबदी नेमतें क्या हैं, वो सिदरतुल मुंतहा क्या है, वो लामका क्या है, वो कुर्बे ख़ास क्या है, ये सब दिखाने के साथ साथ अपना जलवा दिखाने के लिए बुलाए हैं। हमारी कुदरत की निशानियाँ दिखाने के लिए बुलाए। लिनूरियहू मिन आयातिना, हम अपनी कुदरत की निशानियां दिखाने के लिए बुलाए हैं। दिखाने वाला वो, देखने वाले ये, दिखाने वाला खुदा, देखने वाले मुस्तफ़ा। अब खुदा ने क्या क्या दिखाया, मुस्तफ़ा ने क्या क्या देखा, हम मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करेंगे, वरना ये मजमून बड़ा फैला हुआ मजमून है, घंटों नहीं दिनों बयान किया जाएगा। और भी उलमा, अपन तो छोटे मोटे आदमी हैं, अपनी मालूमात ही महदूद है, हम क्या बयान कर सकें। यही क्या कम है कि हम सब का नाम हुजूर के गुलामों की लिस्ट में आ जाए। मस्जिद रज़ा में तालाब कट्टे पर, ये मस्जिद के अंदर बैठकर अल्लाह का, अल्लाह के नबी का जिक्र करने वालों की लिस्ट में हमारा नाम आ जाए, यही हमारे लिए कितनी सआदत की बात होगी। अल्लाह करीम हमारी ये हाज़िरी कबूल हो जाए। हम जब इस तरह की बात इस पूरे वाक़े की खुलासे में बयान करते हैं तो इस पर एक एतराज़ होता है, नहीं जी हुजूर को मेराज तो हुई मानते हैं, मगर जिस्मानी नहीं रूहानी हुई थी, ख्वाब में हुई थी, बसीरत की आंखों से, दिल की आंखों से हुजूर ने देखा था, माथे की बसारत की आंखों से नहीं देखा था। हुजूर ख्वाब देखे थे, ख्वाब में ये मेराज हुई। इस मेराज को मेराज रूहानी बोलना चाहिए। जो लोग मेराज जिस्मानी बोलते हैं, हुजूर जिस्म जिस्मानियात के साथ गए थे, ये गलत है। कुछ लोगों का कहना ये है। हम दूसरों की बातों पर ध्यान क्यों दें? अगर हम अपने दिमाग से सोचें, आज हम रात में सो गए, अगर आप हम सब ख्वाब में मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच गए हैं, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हैं, मुआजहा में खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं,
सुबह उठकर अगर हमने बयान किया, अरे यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ, रात में हुजूर के दरबार में था, मैंने ऐसा ख्वाब देखा। दूसरे ने कहा मैं तो वहाँ नमाज पढ़ा। तीसरे ने कहा मैं मस्जिद हराम में खाने काबा का तवाफ़ किया। सामने वाले इनकार करते या इकरार करते? मानते नहीं मानते? ख्वाब है भाई। अगर मैं बोलूं मैं रात में गया सुबह आया, बोलेंगे इसको पागल खाना ले जाओ। तुम यहां से एयरपोर्ट नहीं जा सकते हजरत, वीजा कब लिए, पासपोर्ट कब बनाए, तुम्हें गए कैसा आए कैसा, हो ही नहीं सकता, अक्ल में आने वाली चीज नहीं। रात में गए सुबह तक आ गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी अगर ख्वाब में आज भी आप और हम दुनिया के किसी भी खित्ते में अगर जाते हैं, सुबह अगर किसी को बताते हैं तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ख्वाब में बहुत कुछ हो सकता भाई, जिस्मानी तौर पर नहीं हो सकता। अगर हुजूर की ये मेराज रूहानी हो, ख्वाब हो, तो दुनिया पागल नहीं है जो सारी दुनिया में रूहानी नहीं जिस्मानी मेराज का जिक्र करने वाली। खुद कुरान ने, अहादीस ने जो बयान किया उसका क्या कहेंगे फिर आप? और ये नामुमकिन नहीं। ऐसे हुजूर को 33 मर्तबा मेराज हुई है। कौन सी? रूहानी मेराज। एक मर्तबा जिस्मानी मेराज हुई है। 34 मर्तबा हुजूर को मेराज हुई है। 33 मर्तबा रूहानी मेराज, एक मर्तबा जिस्मानी मेराज। ये जिस्मानी मेराज जिस रात को हुई उसी रात को शबे मेराज कहते हैं। हमारे बुजुर्गों ने नुक्ता दानी बयान करते हुए, पॉइंट्स निकालते हुए उन्होंने कहा भाई तुम मेराज 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 कहते हो ना, ये दिखने में मेराज में 5 हुरूफ हैं, ज़रा गौर से सुनना। मेराज में 5 हुरूफ हैं, इनमें से हर हर्फ एक एक राज को जाहिर कर रहा है और 5 बड़े बड़े सवालों का एक एक हर्फ जवाब दे रहा। ये पूरा लफ्ज़ मेराज लफ्ज़ एक है मगर पूरे लफ्ज़ों में 5 हुरूफ हैं, मीम आइन रे अलिफ जीम, और हर हर्फ एक बड़े मसले का जवाब दे रहा है, बड़े मसले का हल निकाल रहा है। लोग कहते हैं भाई ये जो आज की रात शबे मेराज में जो रात है, शबे मेराज में जो मेराज कराई गई किसको? किसको? आदम अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को, हजरत इब्राहिम को, किसको मेराज कराई गई? लफ्ज़े मेराज का पहला हर्फ मीम कह रहा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये मीम इशारा कर रहा है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को मेराज कराई गई। दूसरा हर्फ उसमें आता है आइन। ये आइन इशारा कर रहा है जो लोग पागलपन की बातें कर रहे हैं, हुजूर फर्श पर सोए थे, ज़मीन पर सोए थे, ख्वाब देखे थे, ये ख्वाब देखे नहीं, ये ख्वाब देख रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। मीम के बाद जो आइन है वो इशारा कर रहा है ये ज़मीन पर नहीं, आसमान पर, फर्श पर नहीं, अर्श पर मेराज हुई है। मीम के बाद आयन इशारा कर रहा है ये आयन अर्श का आयन है, फर्श पर नहीं अर्श पर मेराज हुई है। फिर अगर ये सवाल होता है कि दिन में हुई थी कि रात में, रे बता रहा है कि रात में मेराज हुई थी। फिर सवाल ये पैदा होता है कि मेराज किसने कराई? रे के बाद अलिफ आ रहा है कि ये मेराज अल्लाह ने कराई है। फिर उसके बाद वो 100 सवालों का एक जवाब, ये मेराज रूहानी थी कि जिस्मानी? जीम बता रहा है कि रूहानी नहीं जिस्मानी मेराज। कोई नारा भी लगा सकता है। हम कोई मजाक की बातें नहीं कर रहे हैं, हम हुजूर के मेराज का जिक्र कर रहे हैं। हम मजा ले लेकर अजमतों की बात चल रही है, हुजूर की रिफतों की बात चल रही है, अपनी गुलामी का सबूत देते हुए मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम नबी का मेराज का जिक्र कर रहे हैं। हम वो जिक्र कर रहे हैं जो रब ने अपनी कुदरत कामिला से अपने हबीब को अपना जलवा दिखाया है। ये इतना बड़ा जिक्र कर रहे हैं। हुजूर का ये ऐसा मोजज़ा है, हुजूर के सारे मोजज़ात एक तरफ, ये मोजज़ा एक तरफ। हुजूर को बेशुमार मोजज़ात अता किए गए थे।
अल्लाह ने जो मोजेज़ात अता फरमाए, कुछ ज़मीनी मोजेज़ात हैं, कुछ आसमानी मोजेज़ात हैं। ज़मीनी मोजेज़ात चंद ये हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ज़मीन पे चलते थे ना, ऐसा लगता था ज़मीन पे हुज़ूर नहीं चल रहे, ज़मीन लपेटे 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 जा रही है। इसलिए साथ में चलने वाले सहाबा, जबकि हुज़ूर नॉर्मल अंदाज से चलते थे, दौड़ते नहीं थे, नॉर्मल अंदाज से चले तो सहाबा को दौड़ने की तरह चलना पड़ता था। गोया ये हुजूर का मोजेज़ा है ज़मीन पे चलने का। हुजूर दौड़े नहीं, मामूल के मुताबिक चले तो ज़मीन यूं लपेटे जाती थी, यानी हुजूर ऐसा लगता दौड़ रहे हैं, ऐसा लगता नहीं, दौड़ते नहीं थे। मामूल के मुताबिक चले तो भी हुजूर के चलने का ये मोजेज़ा था। हुजूर आम सहाबा की महफिल में जब बैठ जाते तो कोई मखसूस अंदाज से, कोई बुलंदी पर नहीं, यूं बैठे तो भी हुजूर ऐसा लगता था जैसे हुजूर को एक बड़ा तख्त ऊंचा बना दिया गया, उस पर हुजूर बैठे हुए हैं। ये बैठने का मोजेज़ा मालूम होता था। जब बड़ा मजमा, वो 1,24,000 कमोबेश हज्जतुल वदा के मौके पर जो मजमा था सहाबा का ना, उतने बड़े मजमे में छोटे बड़े मुतवस्सित साइज के सारे सहाबा मौजूद हैं, मगर इतने बड़े मजमे में हुजूर सबसे बुलंद नजर आते थे। मैं क्या लफ्ज बोला? बुलंद बोला, लंबे नहीं बोला, फर्क देखो। लंबा होना भी एक ऐब है, गिड्डा होना भी ऐब है। हुजूर गिड्डे भी नहीं, लंबे भी नहीं, बुलंद नजर आते थे। ये हुजूर जब खड़े हो जाते तो ये हुजूर का मोजेज़ा था। और ये कहाँ ज़मीन की बातें कह रहा हूँ मैं। हुजूर जब ज़मीन पे रहते, हुजूर के जिस्म मुबारक का साया ज़मीन पे नहीं पड़ता था। हुजूर जब ज़मीन पर थे तो कभी हुजूर के ऊपर मक्खी नहीं बैठती थी। हज़रत अबू हुरैरा से कहा, लाओ क्या है? कहा, या रसूलल्लाह मेरे पास कुछ खजूरें हैं, या रसूलल्लाह ज़रा बरकत की दुआ कर दीजिए। हुजूर ने उसके ऊपर हाथ रखा, कहा अल्लाह बरकत दे, जाओ अबू हुरैरा खाओ खिलाओ। 30 साल तक खाते रहे, खिलाते रहे। हजरत जाबिर के मकान पर दावत हुई, या रसूलल्लाह आप और 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा सहाबा मेरे मकान पर आ सकते हैं। छोटा सा बकरी का बच्चा, उसको मैंने ज़बह किया है और खाना तैयार किया, मेहरबानी होगी आप तशरीफ़ लाइए। हुजूर ने 1400 सहाबा या उससे भी ज़्यादा, आ जाओ जाबिर के मकान पे दावत है। मकान गए, हुजूर ने अपना लुआब दहन खाने में मिलाया, हांडी में डाला, आटे को जो गूंदा गया था उसमें मिलाया, बरकत की दुआ दी और फरमाया 10-10 आदमी आओ बैठो और खाओ। जो खाना ले दे के 5 या 7 आदमी खा सकते थे, 1400 से ज्यादा मुसलमान शिकम सैर होकर खा के निकल गए। ये वाकया कहाँ का? जमीन का। ये वाकया जमीन का। ओ दरख्त अल्लाह का नबी बुला रहा है। दरख्त दौड़ता हुआ आता था। ये वाकया कहाँ का? जमीन का। वो ऊँटनी फरियाद करने के लिए आई थी। ये वाकया कहाँ का? जमीन का। ऊँट को मालूम है ये पैगंबर हैं, पढ़े लिखे जानवर नहीं समझ पा रहे हैं आज हम। ऊँट को मालूम है ये नबी हैं, ये पैगंबर हैं। हमारी जुबान में मुंह नहीं सो जानवर। और ये पढ़े लिखे जानवर होकर इन मोजज़ात को ईमान की दुनिया में जब आते हैं तो ये सब ईमान वाली बातें हैं। चुनांचे ये वाकया ज़मीन का है, ये ज़मीन का मोजज़ा। ये और इस तरह के बेशुमार मोजज़ात ज़मीन पर नज़र आते हैं, ये ज़मीनी मोजज़ात कहलाते हैं। कौम में से एक आदमी, जुम्मा का दिन था, हुजूर तकरीर कर रहे थे, खड़ा हो गया, या रसूलल्लाह कैद साली शबाब पर है, जानवर बिलक बिलक के मर रहे हैं, पानी मिलता नहीं, कतरे कतरे के लिए इंसान परेशान है, लिहाजा आप ज़रा सा हाथ उठा दीजिए। सुबहान अल्लाह तो कहो, आप हाथ उठा दीजिए। आप यूं हाथ उठा देंगे ना, अल्लाह ताला आसमान से बारिश यूं नाजिल फरमाएगा। हुजूर को मालूम है बारिश नहीं हो रही, मगर फिर भी हुजूर उम्मत को हरकत में लाना चाहते हैं। हरकत में ही बरकत है, हरकत में बरकत है। हुजूर को मालूम है कैद साली है, मगर फिर भी उम्मत हरकत में तो आए। या रसूलल्लाह आप ज़रा सा दुआ कर दीजिए। सहाबा बयान करते हैं, हुजूर ने यूं हाथ उठाए, हमने देखा आसमान खुला हुआ था, बादल खुला हुआ था, हाथ उठाए तो यूं बादल उमड़ उमड़ कर आने लगे। अल्लाह बारिश,
यूं हाथ फेरा, रिमझिम नहीं मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मुसलमानों ने नमाज पढ़ी, माथा जब जमीन पे टिकाया, ये आज जैसी फर्शी और मखमल जैसे ना वह नहीं थी, मदीने की गोरी गोरी मिट्टी थी। आप बोल रहे होंगे गोरी मिट्टी क्यों कह रहा, इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा होगा काली मिट्टी भी होती है, लाल मिट्टी भी होती है, मगर जब मदीना जाना हो तो देखना वहां की मिट्टी गोरी है, सफेद है। मैं गोरी का लफ्ज इसलिए कह रहा हूं कि गोरे गोरे पैगंबर चूंकि वहां पर आराम फरमा रहे हैं। गोरी मिट्टी, उनकी पेशानी उस पानी से, उस मिट्टी से लथपथ हो गई। मुसलमान नमाज उसी हालत में पढ़ लिए, घरों को आए, रात तक बारिश हुई, रात गई, दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, रोज बारिश हो रही, यहां तक कि 8 दिन हो गए। आइंदा जुमा तक रात दिन बारिश हो रही है। यूं यूं आसमानी मौजिज़ा। दूसरी जुमा फिर वो सहाबी खड़े हो गए, या रसूलल्लाह पहले बारिश आती नहीं, अब रुकती नहीं। पहले बारिश नहीं आ रही थी तो जानवर मर रहे थे, इंसान बहुत परेशान थे, अब बारिश इतनी आ गई कि अब जानवर बह बह के जा रहे हैं। रहमत है मगर रहमत इतनी बरसी है कि हमारे लिए जहमत हो रही है। रहमतुल लिल आलमीन, कुछ करम फरमाइए ना। दुआ कर दो अल्लाह बारिश रोक दे, दुआ कर दो अल्लाह बारिश रोक दे। मेरे नबी की ज़बान से ये जुमला नहीं निकला है अल्लाह बारिश रोक दे। हमारा ईमान कहता है अगर हुजूर ये दुआ करते अल्लाह बारिश रोक ले, क़यामत तक बारिश नहीं आती। हुजूर ने ये दुआ नहीं की, हुजूर ने ये दुआ की अल्लाहुम्मा अलैना वला अल्लाहुम्मा अलैना अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। अरे अल्लाह बारिश तो हो, बारिश हो, बारिश हो, बारिश होती रहे, मगर हमारे ऊपर नहीं होना, मदीने के इर्द गिर्द बारिश होते रहना था ताकि खेती बाड़ी उगती रहे। हजरात सहाबा का बयान है, बुखारी शरीफ के हाशी में बात खुल्लम खुल्ला लिखी हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने छतरी खोल के ठहरा दिया है, पूरी बारिश छतरी पर तो हो रही मगर बाहर गिर रही है, मदीने में कतरा नहीं गिर रहा है। ये आसमानी मोजेज़ा है। अली नमाज नहीं पढ़े, हाँ या रसूलल्लाह नमाज नहीं पढ़ा, आपने कहा था ना मेरा जी चाहता है मैं कुछ देर सो लूं, तो गोदी अली की सर नबी का था, वाकया पूरा मालूम है आपको। मैं इशारा देना चाहता हूं, बाद में फिर दुआ की, इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट कर आ गया, पूरा वाकया आपको मालूम है। ये मोजेज़ा है मगर जमीनी नहीं, आसमानी मोजेज़ा है। ये जमीन पे नहीं आसमानों पे रहने वाला सूरज हुजूर के हुक्म पर, दुआ पर फौरन पलट कर आया। अबू जहल मानने को तैयार नहीं है, कुफारे मक्का मानने को तैयार नहीं है। कोई ऐसा मोजज़ा दिखाओ जिसकी बुनियाद पर हम ईमान लाना चाहते हैं। अच्छा बोलो क्या देखना चाहते हो? हम कहा आज 14वीं रात है, चांद के 2 टुकड़े करके बताओ हम तुमको मान लेंगे। या अल्लाह, कौम ये सवाल करी, फरमाया उंगली उठाना तेरा काम, 2 टुकड़े करना हमारा काम। शक्कुल कमर का मोजज़ा आलम वजूद में आया। ये मोजज़ा जमीन का नहीं आसमान का मोजज़ा है। ऐसे बेशुमार मोजज़ात जमीन के भी आसमान के भी, जो जमीन पर हुए वो जमीनी मोजज़ात, जो आसमान पर हुए वो आसमानी मोजज़ात। मगर मेराज जिस्मानी और रूहानी, उसके साथ साथ जमीनी और आसमानी मोजज़ा है। मक्के से मुल्क शाम तक जो सफर हुआ ये जमीन का मोजज़ा, फिर वहां से आसमानों पर, आसमानों से लामका के पार, ये जो मोजज़ा है ये मोजज़ा आसमानी है। बड़ी प्यारी बात हमारे बुजुर्गों ने फरमाई, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में रहते थे, शैतान ने कोशिश की बहकाने की। जाहिर है कभी किसी नबी को बहकाकर कामयाब नहीं हुआ। अगर नबी बहक जाए तो फिर कौम का क्या हाल होगा? नबी कभी गुमराह नहीं होता। कुछ लोगों ने हमारे पैगंबर को गुमराह लिखा, गुमराह थे वो। उससे बड़ा गुमराह कौन जो अपने पैगंबर को गुमराह लिख दे? गुमराहों ने गुमराही लिख दी।
कभी कोई नबी गुमराह नहीं हुआ। उसने कोशिश की हजरत आदम को बहकाने की, नाकाम हुआ। हजरत हवा को फुसलाना शुरू किया। मैं वाकई की तफसील में नहीं, इशारा दे रहा हूँ। आखिरकार हजरत आदम दाने गंदुम खा लिए हजरत हवा के कहने पर। जैसी दाने गंदुम खा लिए, अल्लाह के हुक्म से फिर वो ज़मीन से, आसमानों से ज़मीन पर उतार दिए गए। ये वाक़या सबको मालूम है। हज़रत आदम आसमानों से ज़मीन पर उतार दिए गए। अब क़यामत आएगी, हिसाब किताब होगा, सारे जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। ये सब क़यामत के दिन वाली बातें हैं। अभी जन्नत में तो दाखिला नहीं हुआ। मतलब ये हुआ कि हज़रत आदम आसमान से ज़मीन पर आए, गए नहीं। हज़रत ईसा आसमानों पर हैं, आए नहीं। मेरी बात समझ में आ रही? हज़रत आदम आसमानों से ज़मीन पर आए, आसमानों पर गए नहीं। हज़रत ईसा आसमानों पर हैं, क़यामत से पहले आएंगे, अभी आए नहीं। हमारे नबी मेराज की रात में थोड़ी ही देर में गए भी हैं, आए भी हैं। इसी को शबे मेराज कहते हैं। लैलन, थोड़ी सी देर में आसमानों पर गए भी हैं और फिर आसमानों की पूरी सैर करके जन्नतो दोज़ख, लौहो कलम, अर्श, कुर्सी और फिर अजायब कुदरत, खुद खालिक़े कायनात का दीदार करके तशरीफ लाए हैं। ये मेराज की रात का खुलासा बता रहा हूं मैं। अभी इसको हम फैला नहीं पा रहे हैं। नतीजे में एक बात और इसी ज़िम्ने में आती है। अल्लाह ने फरमाया लिनुरियहु मिन आयातिना। ये मेराज का जो वाक़या है ना, हमने अपने क़ुर्बे ख़ास में अपने हबीब को जो बुलाया है, मकसद ये था ताकि हम अपने हबीब को हमारी कुदरत की निशानियाँ दिखाएं। अल्लाह बेशुमार कुदरत की निशानियाँ हैं, दिखाने वाला रब है। जब वो दिखा दिया तो उसके दिखाने में तो कुछ कमी नहीं ना। और फिर देखने वाला भी ऐसा नहीं है हम जैसे तुम जैसे। आंख बंद कर लें, आंख खोलें, दोनों में फ़र्क है। हम कुछ देखना चाहें तो खुली आंख से देखेंगे, बंद आंख से हम देख नहीं सकते। और वो भी देखेंगे तो सिर्फ कुछ हिस्सा नज़र आएगा। मुझे पिछला हिस्सा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मुझे नहीं, आपको भी नज़र नहीं आ रहा। आप सोचेंगे उनको नज़र नहीं आ रहा, आपको भी नज़र नहीं आता। आँख खुली है हमारी, मगर उसके बावजूद हम पीछे नहीं देख सकते। हम बाहर निकलेंगे, आसमान तक देख सकते हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर, मगर इस आँख से इस आँख को देख नहीं सकते हम, इतनी करीब है वो। मगर खुदा की कुदरत देखो, खुदा ने मुस्तफ़ा को अपना जलवा क्या दिखाया। अल्लाहु अकबर। और कोई चीज़ क्या तुमसे निहा हो भला, भला आपसे और कौन सी चीज पोशीदा हो सकती है जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जो सबसे गैबुल गुयूब में जिसकी जात है उसने अपना जलवा दिखा दिया, तो फिर मखलूक है ही कौन सी जो आपसे अभी छुपी हुई है। गोया अल्लाह ने अपना भी जलवा दिखा दिया, पूरी कायनात को भी दिखा दिया। जब अल्लाह ने अपने हबीब को आज की रात में अपना जलवा दिखा दिया तो हुजूर की आंखों में वो बसारत आ गई, वो बातें सुना दी, वो वही सुना दी कि हुजूर के कानों में वो समाअत आ गई। फिर मौजज़ात की दुनिया में आने के बाद बड़ी बड़ी तफासीर में, बड़ी बड़ी अहादीस की किताबों में, बड़ी बड़ी तारीख़ में, सीरत की किताबों में ये बात मिलती है। अल्लाह के रसूल के कानों का ये मौजज़ा था, हुजूर दूरो नज़दीक की बातों को आसानी से यकसा सुन लिया करते थे। ये कानों का मौजज़ा था। इसी बात को लेकर आला हजरत ने कहा था, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये कानों का मौजज़ा था। आंखों का हाल ये हो गया, अल्लाहु अकबर, वो दूर और नजदीक से कहीं भी रहने वाला रहे, ये अल्लाह के रसूल की आंखों में अल्लाह ने ये बसारत रखी थी। जैसे वक्त वाहिद में दूरो नज़दीक की आवाज़ और बोली और सलाम दुरूद सुन लेते थे, वैसे ही हुजूर को अल्लाह ने आँखों में ये सलाहियत रखी थी। आगे पीछे
दाएं बाएं नीचे ऊपर उजाले में अंधेरे में यकसां देखा करते थे। ये खुदा की कुदरत की कारीगरी सनअत है, उसकी कुदरत है। ये हुजूर का ये मौजज़ा, इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वही सुनने वाला है, वही जानने वाला है। जब उसने अपने हबीब को सुनने की ताकत दी, बराबर दूर और नज़दीक से एक साथ सुनने लगे। और जब देखने की सलाहियत दी, फिर उसके लिए मस्जिद रज़ा हो या बरेली हो या दुनिया का कोई खित्ता हो, जो नबी पर दुरूद व सलाम कहीं से पढ़ रहा हो, वो खुद ही सुन भी लेते हैं, देख भी लेते हैं। इस रात के खुलासे में से ये बात आती है, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम दिखाएं अपने हबीब को, मिन आयातिना, अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। एक बात जहन में यह आती है, हज़रात अंबिया किराम अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम 1,24,000 अंबिया किराम रसूलान निज़ाम कमोबेश जो तारीख़ बताती है, हमारे अकायद की दुनिया में ये जुमला कहा जाता है। उसमें ये बात बुज़ुर्गों ने, मुहक्किकीन ने बताई है, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक किसी नबी, किसी रसूल ने कभी ये नहीं कहा, अय अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। ये आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, आपकी दिलचस्पी बरकरार है। आप हैबत न खाएं, लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा, आप गौर से सुने। आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से किसी ने भी सिवाय हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किसी ने भी रब से नहीं कहा, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, या तू मुझे अपना जलवा दिखा। आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा तक किसी नबी, किसी रसूल ने यह ख्वाहिश जाहिर नहीं की, सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या बात है भाई, हज़रत मूसा ही ये सवाल कर रहे हैं, रब्बी अरीनी, मैं मेरे परवरदिगार तू मुझे अपना जलवा दिखा। हज़रत आदम से ईसा अलैहिस्सलाम 1,24,000 कमोबेश नबी दुनिया में, किसी ने भी ये ख्वाहिश जाहिर नहीं की। हज़रत मूसा ने ही ये ख्वाहिश क्यों जाहिर की? ये एक सवाल पैदा होता है। उस सवाल का जवाब भी मेराज से ही साबित होता है, उसका जवाब मिलता है। ज़रा ज़ोर से बोलना पड़ेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से ये मौजज़ा अता फ़रमाया था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पे चले जाते, अपने मारूज़ात पेश करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हम कलामी के शरफ़ से मुशर्रफ़ फरमाता। अल्लाह के कलाम को अपने कान से सुन लिया करते थे, अल्लाह के कलाम को अपने कान से, ज़ाहिरी कानों से अल्लाह के कलाम को सुन लिया करते थे। और जब सुनते थे तो उनके ऊपर कैफियत ये होती, पूरे बदन पर, पूरे जिस्म पर एक एक रोंगटा कान बन जाता था। क्या मतलब, जैसे कान से सुना जाता है वैसे हमतन गोश होकर एक एक रोंगटे से सुना करते थे। इतनी लज्जत, इतना मज़ा, इतना लुत्फ, इतना सुरूर आता था। एक दिन बोल पड़े, अल्लाह तेरा कलाम सुनता हूं तो इतना मज़ा आ रहा है, तेरे देखने में क्या लज्जत आती होंगी। तमन्ना जाहिर की। एक वजह यह भी, हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी ज़िंदगी में मसाइब, आजमाइशें, इम्तिहानात बार बार होते रहे। कौम बनी इसराइल बड़ी डेंजर थी, वो बहुत सताया उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। फ़िरऔन ने ख्वाब देखा था, एक बच्चा तेरी सल्तनत को ख़त्म करने वाला है। चुनांचे उस बुनियाद पर जितने बच्चे दुनिया में थे सबको ज़बाह करने का, उसने काटने का हुक्म दे दिया था। एक बच्चा पैदा होने वाला है बहुत जल्द, उस बच्चे की वजह से तेरी सल्तनत ज़वाल पजीर होने वाली है, तेरे खात्मे का वक्त आ गया। इस ख्याल से कि शायद वो बच्चा पैदा हो गया हो, पूरे कौम के अंदर जितने बच्चे थे, बच्चियां नहीं बच्चे थे, काट दिए गए। रिवायतों में आता कमोबेश 70,000 बच्चों को उनकी माँ की गोदों से छीनकर काट दिया गया था। उसी ज़माने में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उसी ज़माने में जंगल व बियाबान में थे।
हज़रत मूसा की अम्मी को अल्लाह ने हुक्म दिया, अपने बेटे को तुम समुंदर में छोड़ दो। छोटा सा संदूक लिया, उन्होंने उसमें रखा। अल्लाह मेरा बेटा डूब जाएगा, कौन दूध पिलाएगा, कौन निगरानी करेगा, समुंदर में कैसे छोड़ूं? ना ना ना, अल्लाह पर भरोसा था। यही भरोसा हम सबको करना चाहिए। माँ औरत जात अपने बेटे को मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को संदूक में रखा और यूं दरिया नील के हवाले कर दिया। अल्लाह की कुदरत कामिला, दरिया में हज़रत मूसा को समुंदर में बचा के सीधा फ़िरौन के मकान और महल तक ला दिया। फ़िरौन देखा, रही है क्या, ये तो बच्चा है, ऐसा खूबसूरत बच्चा कि आसमान का चांद भी शर्मा जाए, ये बचा कैसे? कहीं ये वो बच्चा तो नहीं जो मेरी सल्तनत ख़त्म करने वाला हो। बीबी आसिया ने बचा लिया, नहीं ये हमारे मुल्क का बच्चा नहीं होता, बाहर से आया होगा। देखो हमको औलाद नहीं है, इसको हम पाल लेंगे, बेटा बना लेंगे। फ़िरौन के दिमाग में उतर गई बात। हज़रत मूसा फ़िरौन की निगरानी में रहे। अल्लाह बेनियाज है, वक़्त आए तो फ़िरौन से भी नबियों, रसूलों, वलियों, मज़हब, दीन, सच्चाई, अच्छाई की खिदमत ले लेता है। लिहाजा अगर कभी बड़े बड़े काम गैर अगर करे तो ताज्जुब मत करना, अल्लाह फ़िरौन से भी बड़ा काम लिया है, वो बड़ी कुदरत वाला है। अलम नुरब्बिका फ़ीना वलीदन व लबिस्ता फ़ीना मिन उमरिका सिनीन। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िरौन के महल में परवरिश पाते रहे। एक दिन आया, आखिरकार वही दरिया में डुबोने का सबब बने। मैं इसके अंदर ये बताना चाहता हूँ, हज़रत मूसा को अपनी पैदाइश से लेकर अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े तजर्बात, बड़े बड़े वाक़यात, बड़े बड़े कामों के मौके पर खुदा की कुदरत देखने में आई थी। किसने बचाया मुझे? कोई कश्ती तो नहीं थी, कोई चलाने वाला भी नहीं था, निगरानी करने वाला भी नहीं था, बचाया किसने मुझे? 70,000 बच्चे एक तरफ काटे जाते हैं और मुझे बचा लिया जाता है। किसने फ़िरौन को मुसख्खर किया? उसके दिल दिमाग में मेरी मोहब्बत डाली। किसने मेरी मां को मुझसे फिर मिलाया? किसने फिर मेरी मां का दूध मुझे पिलाया? किसने दूरी को नजदीकी से, नजदीकी को दूरी से बदल दिया? यहां से लेकर उनकी जिंदगी के बड़े बड़े वाकयात उन्होंने सोचा, देखा। यकीनन उस जात को देखना चाहिए जिसने ये सब मेरे साथ किया। इसलिए मालिक रब्बी अरिनी, मैं तुझे देखना चाहता हूं, तू अपना जलवा दिखा। हजरत मूसा ने रब की बारगाह में ख्वाहिश जाहिर की। हमारा कुरान कहता है, रब्बी अरिनी, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे अपना जलवा दिखा। रब ने फरमाया, लन तरानी, मैं दिखाने पर कादिर तो हूं मगर तुम देख नहीं पाओगे। अल्लाह, मैं नहीं देखूंगा तो फिर कौन देखेगा? कहा एक रात होगी, एक खास बात होगी। सूरज को जब निस्फ नहार हकीकी पर होता है, कोई आंख खोल के देख नहीं सकता, आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। फिर आंख से देखने की जिद करके देख भी लिया, आंख नीचे करेगा, अंधेरा छा जाएगा आंखों में। हमारी आंखों का नूर अंधेरे में बदल जाएगा। कुछ देर तक अगर देखेंगे तो शायद और भी कुछ ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो फिर हम सूरज को देखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? आईना बनाना पड़ेगा, काला नीचे रखो, नहीं तो पानी में देखो तो सूरज ही की शुआएं या सूरज ही की हरारत को महसूस कर सकते हैं, या सूरज की एक शक्ल उसमें नजर आ सकती है। बराह रास्त हम देख नहीं सकते। ये दुनिया का मुशाहिदा है, दुनिया देखती है, देखना चाहे तो। गोया एक जवाब ये दिया गया, बार बार कहते हो रब्बी अरिनी, मुझे दिखा, मुझे अब दिखा, मुझे दिखा। हबीब मूसा कलीमुल्लाह, तुमको हम कलामी का शरफ जो हासिल है यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। तुम मेरा जलवा नहीं देख सकते। अगर देखने का इतना शौक है तो इंतज़ार करो, एक रात आएगी, मेरा हबीब मेरे कुर्ब में आएगा, मेरे जलवे को अपने माथे की आंखों से देखेगा, मैं दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद वो जब जाएगा, रोक लेना,
और उसके बाद गुफ्तगू शुरू करना, उसको आईना बना के मेरा जलवा देखते रहना। जब हुजूर जा रहे थे मेराज में, वो सिदरतुल मुंतहा से भी आगे छठे आसमान पे हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। अभी अभी बैतुल मुक़द्दस में मुक्तदी बने थे, अभी अभी बैतुल मुक़द्दस में हुजूर के पीछे नमाज पढ़े थे। अब जब सवारी आगे बढ़ी तो हुजूर की सवारी से पहले हजरत मूसा इस्तकबाल करने के लिए छठवें आसमान पर मौजूद थे। एक आदमी इस जुमले को पकड़ लिया, समझा मैंने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। अरे भाई, इसका मतलब ये हुआ हमारे हुजूर की ताकत से बढ़कर हजरत मूसा की ताकत मालूम हो रही। अभी हुजूर ऊपर गए नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम पहले पहुंच गए। बुखारी शरीफ में ऐसा ही लिखा हुआ है कि छठे आसमान पर हजरत मूसा से हुजूर ने मुलाकात की, तो हुजूर बाद में पहुंचे, मूसा पहले। इस्तकबाल के लिए इस्तकबाल करने वाला पहले से रहता, मूसा अलैहिस्सलाम पहले पहुंचे, तो मालूम हुआ कि हुजूर से बढ़कर ताकत हजरत मूसा के अंदर है। समझा कि बहुत बड़ा मैंने सवाल किया है। उसको बताया गया, नादान तो समझा ही नहीं, तो कलमा पढ़ रहा पैगंबर का बात और कुदरत मान रहा मूसा अलैहिस्सलाम की। ये तेरी अक्ल में नहीं आएगा, पहले तू इनकी नालैन को सर पे रख, ये राज तुझे समझ में आएगा। ये हमारे हुजूर से पहले जो गए थे, हुजूर से पहले नहीं, हजरत मूसा पैगंबर हैं। हुजूर पैदल नहीं गए, उड़कर नहीं गए, हुजूर एक सवारी पर सवार थे। सवारी की रफ्तार से कहीं ज्यादा मूसा पैगंबर की रफ्तार है। वो बुराक सवारी की रफ्तार से, हुजूर की रफ्तार नहीं, हुजूर से नहीं, हुजूर तो सवारी पर सवार थे। अगर मूसा अलैहिस्सलाम अगर पीछे रहते, बाद में आते, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम इतने बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर की तौहीन होती कि एक जन्नती जानवर की रफ्तार से भी कम हजरत मूसा की रफ्तार है, ये मालूम होता। ये नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम की रफ्तार इस जन्नती बुराक सवारी से कहीं आगे है, और नबियों रसूलों से कहीं आगे हमारे इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये हुजूर की रफ्तार से नहीं, हुजूर की उस सवारी की रफ्तार से आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रफ्तार। चुनांचे हुजूर से मुलाकात हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, प्यारे मुबारक हो, आज की रात आपको बुलाया गया है। आए नहीं, बुलाया गया है। कोहे तूर पे मैं जाता था और आज आपको बुलाया गया है। अपना जाना और है, तुम्हारा बुलाया जाना और है। मैं जाऊं, मेरे मालिक या अल्लाह या रब्बी, मैं बोलूं, जवाब आए ना आए मर्जी उसकी। मैं सवाल करूं, जवाब आए ना आए, मगर तुम्हारी क्या शान है, तुम्हें बुला के कुर्ब में जलवा भी दिखाया जा रहा है, कलाम भी सुनाया जा रहा है। जाओ, बहुत बहुत मुबारक हो, जाओ, मगर वापसी में जरूर मिल लेना। ठीक है, हुजूर गए, वो पूरा वाक़या आपके जहन में आ गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हुजूर ने अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, हबीब मेरे लिए क्या लेकर आए हो? अल्लाह हर किस्म की इबादत, रियाजत, जिक्र, तस्बीह, तहलील सब तेरे लिए लाया हूँ, तेरे सिवा कोई भी इसका अहल नहीं है। यही पाकिज़ा तय्यिबात, यही पाकिज़ा तहियात, यही पाकिज़ा इबादत, रियाजत, जिक्र तेरे लिए करके लाया हूँ मेरे मालिक, इसको मेरी जानिब से कबूल फरमा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये हुजूर ने खुदा की बारगाह में पेश किया।
जब ये मारूज़ात, ये अदब, एहतराम, इज्ज़ व इनकिसार के साथ ये तोहफ़ा हुजूर ने खुदा की बारगाह में पेश किया, ये अदा रब को बहुत अच्छी लगी। इसका जवाब रब ने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु दिया। अत्तहियात में अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात, ये हुजूर की तरफ से, सलाम खुदा की तरफ से। सुन्नियों, तुम्हारा हमारा मुकद्दर, हम अल्लाह की भी रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। नमाज में भी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी दुरूदो सलाम पढ़ते हैं, नमाज के बाद भी दुरूदो सलाम पढ़ लेते हैं। वो कोई और होगा, नमाज में मजबूर होकर सलाम पढ़ रहा है, मजबूर होकर। नमाज के बाद तो जायज नहीं, शिरक है, बिदत है बोल रहा है। हम नमाज में भी सुरूर खुशी से पढ़ते हैं, नमाज के बाद भी सुरूर और खुशी में दुरूदो सलाम पढ़ते हैं, क्योंकि ये रब की तरफ से तोहफा है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, ये अल्लाह ताला की तरफ से। जो करूबियाँ थे, जो फरिश्ते थे, वो भी सुन रहे थे। जब अल्लाह ने अपनी जानिब से अपने हबीब को तोहफ़े सलाम भेजा, ये हमारे आका का करम, एहसान, नवाजिश, इनायत, अता। अल्लाह तेरा सलाम सिर्फ मुझ पर, मेरे ग़ुलामों पर नहीं। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। फिर हुजूर ने कहा, अय अल्लाह तेरा सलाम मुझ पर भी होना चाहिए, मेरे सारे ग़ुलामों पर भी होना चाहिए। फिर ये तोहफ़ा, ये कलिमात हुजूर की जानिब से बारगाह समदियत में पेश किए गए। अब वो जो सुन रहे थे करूबियाँ, वो हामिलीन अर्श, वो मखसूस फरिश्ते, जब उन्होंने देखा अल्लाह क्या कलाम मुस्तफ़ा का है, क्या कलाम रब का है, कैसे कलामों का ये जामे कलाम है। जब उन्होंने देखा, बेसाख्ता उनकी ज़बान से निकल गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं, यानी हर फरिश्ता ये कहने लगा, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जहाँ मैं इस बात की शहादत और गवाही देता हूँ, वहीं पर मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि बेशक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बरगज़ीदा रसूल है। इस तरीके से अल्लाह का, रसूलुल्लाह का, फरिश्तों का कलाम जमा करके अत्तहियात बनाया गया है। हर नमाज में इसको इसीलिए पढ़ाया जाता है। आए मुसलमानों, नमाज पढ़ते वक्त आखिर में यह काम करना और तसव्वुर करना, ये मेराज की रात में देन है। और उसमें इशारा दिया गया, जो भी बंदा इस तरीके से नमाज में जब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, दिल में मेरे आका मौजूद है, मैं उनको सलाम कर रहा हूँ, उस वक्त ये तसव्वुर आए कि ये अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रब ने आसमानों पर बुला के अपने हबीब को सलाम भेजा था। मैं यहीं पर बैठे बैठे सलाम पेश कर रहा हूं, या रसूल अल्लाह, वो आपकी मेराज थी, ये मेरी मेराज है। मेराज मुस्तफ़ा। बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में तो मिलती ही है ये रिवायत, तो उसके अलावा और भी हदीस की किताबों में मिलती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन प्यारी अदाओं, इन प्यारी तहियात तय्यबात को देखकर ये तो जो चीज़ मैंने बयान की हो गई। जब हुज़ूर अल्लाह के दरबार से, अल्लाह की बारगाह से आ रहे थे, तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे हबीब, जब तुम जाकर अपनी उम्मत को ये वाक़या सुनाओगे ना, तो उम्मत पूछेगी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको तो तोहफ़े बहुत से दिए हैं, क्या हम जैसों के लिए भी कोई तोहफ़ा, क्या हमें भी याद किया गया, क्या हमें भी कोई नवाजिश हुई? तो अल्लाह ने फरमाया, जाओ 50 नमाजें ले जाओ। 50 नमाजें लेकर हुजूर आए। ये आपकी उम्मत के लिए आपके खुदा का तोहफ़ा है। ये हुजूर तशरीफ़ लाए, 7वां आसमान तय हो गया, 6ठे आसमान पे हज़रत मूसा से मुलाकात हो गई। हज़रत मूसा ने कहा, प्यारे, वो जलवे आपको मुबारक हो,
बोलो आपको आपके रब ने क्या दिया? हुजूर ने जो राज की बातें थे वो तो राज में रखा। कहा मेरी उम्मत के लिए रब ने 50 नमाजों का तोहफा दिया। बुखारी और मुस्लिम में ये कलिमात बार बार मिलते हैं, फ़इन्ना उम्मतक ला तुतीक। प्यारे, आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकती। सलित तखफीफ, आप दोबारा जाइए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कीजिए, या अल्लाह मेरी उम्मत इतनी ताकत नहीं रखती कि वो 50 वक्त की नमाजें 24 घंटे में रात दिन में पढ़ सके, कुछ कम कर दे। आप जाइए, तवज्जो है, आप जाइए। जब रब ने पहली मर्तबा बुलाया था, अब भेजा रहा है तो हुजूर अपनी तरफ से जा रहे हैं। हुजूर जा रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत पर शायद ये एक गिरा होगा, कुछ कम कर दे। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में रिवायतें जो मिलती हैं उसका खुलासा और निचोड़ ये मिलता है, हबीब 5 नमाजें कम कर लो। हुजूर वापिस आए, फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ठहरिए हजरत क्या हुआ? कहा अल्लाह ने फरमाया 5 नमाजें कम कर लो, यानी 45 नमाजें पढ़ लो। ये भी बहुत भारी है, एक बार और जाइए। अल्लाह के हुक्म के बगैर जाएंगे? नहीं नहीं, आप अपने मकान ही में जा रहे हैं। आप अपने मकान में किसी की इजाजत नहीं। पहले जो बुलाया गया था वो दूल्हे की शायन शान ताजीम के लिए बुलाया गया था। अब उनके लिए जमीन आसमान सब बराबर है, सारे मकान उन्हीं के हैं। जमीन पर रहे तो उनका मकान, आसमान पर रहे तो उनका मकान, कहीं भी रह सकते हैं आप अपने मकान में जा रहे हैं, आप जाइए। या अल्लाह मेरी उम्मत पर यह चीज बारे गिरा ना हो जाए, कुछ कम कर दे। फरमा चलो ठीक है, 5 नमाजें और कम कर लेना। 40 नमाजें लेकर वापस आए। हजरत मूसा से फिर मुलाकात हुई। हजरत मूसा ने फिर सवाल किया क्या हुआ? कहा 5 नमाजें और कम हो गई, ये भी ज्यादा है, आप फिर जाइए। हुजूर फिर दोबारा जाते हैं। हर बार जाते हैं, हर बार मूसा से मुलाकात होती है, हर बार मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं, और हर बार अल्लाह ताला 5 नमाजें कम कर रहा है। 9 मरतबा गए, 9 मरतबा आए। शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूं आपको। मैं अब समझ में आ गई बात। 9 मरतबा हुजूर गए, 9 मरतबा आए। पहली मरतबा जो गए उसे जब मिला लेते हैं तो 10 मरतबा गए, 10 मरतबा आए। दिखने में एक बार गए, मगर एक बार की आड़ में 9 मरतबा गए। हर बार जब 5 नमाजें कम हो गई, 5 9 45 नमाजें कम हो गई। हजरत मूसा ने तब भी कहा प्यारे ये भी 5 नमाजें ज्यादा हैं, आप जाइए और भी कुछ कम करा कर आइए। हजरत मूसा से हुजूर ने फरमाया ना, अब मुझे गैरत आती है, कहीं ऐसा ना हो जाए इस बार रिवायत के मुताबिक ये 5 नमाजें भी अगर कम कर दी गई तो फिर मेरी उम्मत में ऐसे ऐसे मेरे गुलाम हैं। या रसूलल्लाह, अल्लाह ने तोहफा दिया और आप वापस करके आ गए। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा की नमाज का हाल ये था, इशा की नमाज पढ़ने के बाद कभी कभी 2 रकात नमाज नफल इतनी लंबी अदा करती, सुबह का उजाला रोशन हो जाता था। इतना लंबा क़ियाम 2 रकात में। अल्लाह कहती छोटी रात बनाया, फातिमा तेरी इबादत 2 रकात भी कायदे से नहीं कर पाती, सुबह हो जाती है। कैसी नमाज पढ़ा करती थी। ये नाशुक्री ना हो जाए, कहीं कुफरान नेमत ना हो जाए। मूसा मुझे दोबारा जाने के लिए ना कहो, बस अब मैं नहीं जाऊंगा। ये यहां तक तारीख में, रिवायतों में, अहादीस में बेशक खुले अल्फाज में खुलासा मिलता है। अब यहां रहकर 2 अहम बातें, आखिरी बात ही है, आखिरी बात में तो छोटी छोटी बातें।
सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाँच 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 नमाजें कम कर दी। क्या अल्लाह ताला को नहीं मालूम था मेरे हबीब की उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती करके? आज तक किसी बदअकीदा ने ये बात कभी नहीं कही हुजूर को इल्म गैब नहीं, सब आसानी से बोल लेते हैं। ये जुमला सुनकर भी तो बोलो ना अल्लाह को भी इल्म गैब नहीं था। तो क्या हुजूर को हजरत मूसा बार बार सिखा कर दे रहे, बार बार हुजूर जा कर बोल रहे हैं? जब अल्लाह आगे चलकर 45 नमाजें कम करना ही था, एक साथ कम कर देना था। 5 5 5 5 क्यों कम कर रहा है? ए मेरे बंदे खामोश, ये राज है। वो ख्वाहिश थी कोहे तूर पर हजरत मूसा की, मालिक मैं तुझे देखना चाहता हूं। रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, मैं तुझे देखना चाहता हूं, तू मुझे अपना जलवा दिखा। मैंने कहा था मैं तुझे अभी नहीं दिखाऊंगा, अगर दिखा भी दूंगा तो तू देख नहीं सकता। एक रात आएगी मेरा हबीब मेरे पास आएगा, नमाज का बहाना करके तू पलटाते रहना, मेरा जलवा देखते रहेगा, आकर अपना जलवा दिखाता रहे। नमाजों के कम कराने का बहाना है मूसा की तमन्ना को पूरा कराना है। इसीलिए जबकि अभी 7 आसमानों पर दूसरे अंबिया हैं, किसी ने ये बात नहीं कही, एक हजरत मूसा की वो तमन्ना आज पूरी हो गई। एक बात और, आय अल्लाह अब 5 नमाजें रह गई, कोई ना बकार ना हंजार बंदा ये गुस्ताखी और बेदबी कर सकता है, अल्लाह की बात का भी भरोसा नहीं। कभी 50 बोलता, कभी 45 बोलता, कभी 40 बोलता, कभी 35 बोलता, हर बार 5 5 5 5 कम करा रहा। कोई मरदूद बंदा ये बोली बोल सकता है, अरे अल्लाह 5 5 5 5 क्यों कम कराया? तेरी बात तो कभी बदलती नहीं ना, मा युबद्दलुल कौल लदैया, तूने खुद ही कुरान में फरमाया मेरी बात कभी भी बदली नहीं जाती। ये क्या मतलब हर बार तेरी बात बदली जा रही है? ऐ मेरे बंदे खामोश रहे, ये मेरा ही फरमान है, मा युबद्दलुल कौल लदैया, मेरी बात कभी भी नहीं बदली जाती, मगर महबूब की बात टाली भी तो नहीं जाती। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरा महबूब मेरे पास बार बार आ रहा है ना, ये भी तो देख, महबूब की बात टाली नहीं जाती। अगर मेरी बात बदली नहीं जाती तो महबूब की बात टाली भी नहीं जाती। क़यामत तक पैदा होने वाले बदअकीदा शफाअत का इनकार करने वालों, 50 नमाजों में से 45 नमाज हजरत मूसा की शफाअत से कम हुई। अगर शफाअत का इनकार करना है तो 50 नमाजें पढ़ लिया करो। सुन्नी शफाअत को मानते हैं इसलिए उन्होंने सिर्फ 5 नमाज पढ़ेंगे, तुम लोग 50 नमाजें पढ़ो चूंकि शफाअत को नहीं मानते। तो शफाअत तो मूसा की थी हजरत हुजूर की बारगाह में, और हुजूर ने खुदा की बारगाह में शफाअत की। गोया ये 2 की शफाअत से 45 नमाजें कम हुई। मेराज में शफाअत का मसला भी हल हो गया। फिर मत बोलना जिंदा रहे तो शफाअत, मुर्दा रहे तो नहीं। तो फिर क्या बोलते मूसा अलैहिस्सलाम को, क्या बोलते हमारे पैगंबर को? मानना पड़ेगा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और अगर तुम जिंदा नहीं माने तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम की बात पर जो हुजूर खुदा की बारगाह में गए और 45 नमाजें वक्फे से जो कम कराए हैं, ये यकीनन मूसा भी जिंदा, हुजूर भी जिंदा, खुदा भी जिंदा, इन सब को जिंदा मानने वाली कौम सुन्नी भी जिंदा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं। अल्लाह 5 नमाजों का ही सवाब मिलेगा ना, मेरी बात बदली नहीं जाती, मेरे हबीब की बात टाली नहीं जाती। मेरे बंदो याद रखना, पढ़ना 5 ही नमाज,
मगर सवाब मैं 50 नमाजों का दूंगा। मेरी बात तो 50 नमाजों की थी ना, मेरी बात अपनी जगह वैसे ही है। बज़ाहिर ये जो कमी हुई मेरे हबीब की शफाअत से हुई है। 50 नमाजें पढ़ने पर जो सवाब देने वाला था वही सवाब दूंगा, अगरचे 5 नमाजें तुम पढ़ते रहो। इसमें मेरी बात भी पूरी हो जाएगी, मेरे हबीब की बात भी पूरी हो जाएगी। ये है मेराज का फलसफा। इसलिए नमाजियों को चाहिए खाली नमाज न पढ़ें, नमाजियों को चाहिए खाली नमाज न पढ़ें। नमाज के अंदर अत्तहियात रखा गया वो तो पढ़ते हैं, मगर मेराज अगर अपनी चाहते हो तो नमाज जिस नबी पर अल्लाह ने वो कुर्ब खास में बुला के जो नेमत दी थी, उस नमाज को हम अपने माथे को जमीन पे टिका दें, हद से ज्यादा आजिज़ी इनकिसारी का मुजाहिरा करें। ऐ अल्लाह, मेरे पूरे बदन में सबसे ऊंचा मेरा सर है, मेरे पूरे बदन में सबसे ऊंचा मेरा सर है। इससे ऊपर भी कोई चीज होती वो भी तेरी बारगाह में गिरा देता, तुझे गवाह बनाता। मैं कुछ भी नहीं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। मैं बंदगी कर रहा हूँ, नियाजमंदी कर रहा हूँ, आजिज़ी कर रहा हूँ, इनकिसारी कर रहा हूँ। ऐ अल्लाह, मैं इस सर को तेरी बारगाह में झुका कर तेरी इबादत कर रहा हूँ, तू गवाह रहना मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ तू है। ऐ मेरे बंदे, तू कुछ भी नहीं, तेरी ये बेनियाजी नहीं, नियाजमंदी है, तेरी ये बंदगी है, तेरी ये आजिज़ी है। मुझे इतनी पसंद आई है, तेरे हबीब को ऊपर बुला के मेराज का रुतबा दिया, तुझे नीचे झुका कर मेराज का रुतबा दिया। अस्सलात नमाज, अस्सलाम सलाम। तो मोमिन सुन्नी सहीहुल अकीदा मोमिन जब नमाज पढ़ता है, नमाज में फिर दुरूद व सलाम पढ़ता है, तो गोया नमाज भी पढ़ रहा है, सलाम भी पढ़ रहा है। गोया मेराज की रात का पूरा नक्शा अपने जहन में बसा के नमाज पढ़ रहा है। सिर्फ एक तसव्वुर नहीं है ये, ऐसी नमाज होती है। मैं क्या, मेरी अपनी औकात क्या, मेरी हैसियत क्या, मेरे मालिक मैं तो तेरी इबादत नहीं कर सकता, हाँ तेरे महबूब की अदाओं को अदा कर रहा हूँ। तेरे हबीब की अदा का नाम ही इबादत है। ऐ मेरे बंदो, मेरे हबीब की अदाओं को अदा करोगे, अस्ल की नकल करोगे, अस्ल की कॉपी करोगे, ये नकल भी तुम्हारे लिए अस्ल हो जाएगी, ये नकल भी तुम्हारी असल हो जाएगी, और इसमें तुम मेरे हबीब के सच्चे गुलाम कहलाओगे, मेरे सच्चे मुती और फरमा बरदार कहलाओगे। नतीजे में मेरा हबीब भी खुश होगा, मैं भी खुश होऊंगा। इस रात में ये तोहफा नमाज जो दिया गया है, बंदे मोमिन अगर ये सब बातें जहन में दिल में बसा के जब नमाज पढ़ता है, तो फिर इसकी नमाज भी उसके लिए रूहानी मेराज का ज़रिया बन जाती है। मेरे मालिको मौला, मुख्तसर से वक्त में छोटे मोटे अंदाज से टूटे फूटे अल्फाज में तेरे हबीब का जो मैंने जिक्र किया है, मेरे बोलने में किसी भी तरह की गलती हो तो मैं मुआफ़ी का तलबगार हूँ, मुझे मुआफ़ फरमा दे। ये सारे हमारे भाई बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ, जितने पाकीज़ा मकसद को लेकर बैठे हैं, तेरे हबीब का मेराज वाला पाकीज़ा जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। हम सब का बैठना, सुनना, सुनाना सब अपनी बारगाह में कबूल फरमा। 5 वक्ता नमाजों के पाबंद की हमें, हमारे घर वालों को तौफीक अता फरमा। इखलास और लिल्लाहियत के साथ, खुशू और खुजू के साथ तेरे हबीब के तसव्वुर में डूब कर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अपने हबीब की गुलामी में हम सबको कबूल फरमा। सब के कारोबार में तरक्की अता फरमा। बीमारियों को शिफा से बदल दे, परेशानियों को दूर फरमा। जो आमीन बोल रहे हैं अल्लाह उनकी आमीन में बरकत कबूल फरमा, और जो आहिस्ता बोल रहे हैं उनकी सुस्ती को दूर फरमा। हर मस्जिद को सजदों से आबाद करने की तौफीक अता फरमा। सारे मोमिन आपस में एक दूसरे के लिए ज़रिया बन जाएं, मददगारी करें, ताउन करें, एक दूसरे के उखुवत के साथ साथ प्यार और मोहब्बत के साथ साथ मदद करने का जज्बा अता फरमा। नेकियों की तौफीक अता फरमा, बुराइयों से नफरत अता फरमा। सारे आलमी इस्लाम के मुसलमानों को, मोमिनों को ईमान, अकीदे, जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। जब तक दुनिया में रख मालिको मौला किसी मोहताज का मोहताज न बना, अपना और अपने हबीब का मोहताज बना के रख।
मरते दम हम सब की ज़बानों पर कलिमा तय्यबा जारी फरमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दिल की गहराई से ज़ोर से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। बिजाहि सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, बिजाहि इमामिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।